Good evening to you all. Good evening. Meeting number 2268 of Rotary Club Chandigarh Midtown is called to order. I hand over the meeting to President Sanjay Bhatia. Over to you, Sanjay. Thank you, Sergeant Passman Lutherji. You really have a very adorable style of welcoming and greeting everyone. This is my style, yeah. Yes, I always, very nice, very without warm. tie, I feel very uncomfortable. And welcome, good evening to all of you, and especially our guest speaker for this evening, Sir Rich. लुथर सर अपने ड्राइवर ने कहो हॉर्न ना बजाए. Horn na bajaye, horn na bajaye. I would request and Shivani Kapoor who have kindly begin with the invocation for this evening. गुड इवनिंग एवरीवन. आज मैं आपके सामने कविता पेश करने जा रही हूँ जो मुझे मेरे किसी दोस्त ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भेजी थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा मुझे शेयर करनी चाहिए. मुझे पर्सनली वो बहुत टचिंग लगी, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ. कविता का शीर्षक है उच रह तो नहीं गया. 3 महीने के बच्चे को दाई के पास कर जब जॉब पे जाने वाली माँ से दाई ने पूछा, कुछ रह तो नहीं गया मेम साहब, देख लीजिए पर्स चाबी सब ले लिया ना. अब वो ऐसे कहे कि जिसके पीछे पैसे के पीछे भागते भागते सब कुछ पाने की ख्वाहिश में वो जिसके लिए सब कुछ कर रही है वही पीछे रह गया, उसका बच्चा ही पीछे रह गया. शादी में दुल्हन को विदा करते ही शादी का हॉल खाली करते हुए बुआ ने पिताजी से पूछा, भैया देख लीजिए पीछे कुछ रह तो नहीं गया, चेक कर लो ठीक से. पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगे कि जिस बेटी को विदा किया है उसके सब खिलौने, उसका सब बचपन, वो सब तो पीछे ही रह गया. फिर एकदम से बुआ ने पूछा, भैया देख लिया ना कुछ पीछे तो नहीं रह गया. बुआ से इस सवाल पर दिल में एक ही आवाज थी, सब कुछ ही तो पीछे रह गया. मेरी बेटी की सारी यादें पीछे रह गई. जब सेवानिवृत्ति का समय आया तो पियोन ने पूछा, बाबूजी चेक कर लीजिए आपका कुछ सामान पीछे तो नहीं छूट गया. थोड़ा रुका और सोचा कि पूरी जिंदगी यहीं तो रोज आना जाना था, अब यहाँ नहीं आना होगा, सब कुछ तो यहीं रह गया, सब कुछ तो पीछे रह गया. शमशान से लौटते वक्त बेटे ने एक बार फिर से गर्दन घुमाई, एक बार फिर सोचा कि पिता को एक बार आखिरी बार पिता का चेहरा देख पाऊं, पर वो नहीं देख पाया. दोस्त ने पूछा, कुछ रह तो नहीं गया. भरी आंखों से बोला, नहीं कुछ भी नहीं रह गया, अब और कुछ भी नहीं रह गया. वे सदा मेरे साथ रहे, जो रह गया है वो सदा मेरे साथ रहेगा. एक बार समय निकाल कर सोचें, शायद पुराना समय याद आ जाए, आंखों में आंसू आ जाए और आज वो जी भर कर जीने का समय फिर मिल पाए. सभी दोस्तों से यही बोलना चाहती हूँ, यारो क्या पता अब इस जीवन की शाम हो जाए, इससे पहले ऐसा हो सबको गले लगाओ, दो प्यार भरी बातें करो ताकि कुछ पीछे ना छूट जाए. Thank you. Thank you, Shivani. This was really wonderful and something really that we need to reflect on. Not Jeevan ki Sham, balki har Sham ko, I think we have to reflect as to what we are contributing, and especially as Rotarians, as part of family of Rotary, the ANS, and this is more meaningful to us in the bonds, the relationships we build with each other, with the community. Really appreciate, it was a very nice invocation which you read out to us this evening. Aaj ki Sham Bohar ke naam shayad, because when I was reading the M2M that was made by Secretary Shuchi and Club Service Director Nitin, I saw
of elements about Bohar, but I will leave it when we have the guest speaker taking his session with us, taking his time with us. A few things I want to mention in terms of what are the recent happenings. I appreciate members, senior members especially, who have been going for the COVID vaccine shots and putting photographs. It's very encouraging, especially for those who are still on the fence, who do not know abhi kare, baad mein kare, ya rehne de. So there's also a request from few members if a camp could be organized for the senior Rotarians. So I am in touch with AG Dr. Rita Kalra and past friend Dr. Vanita Gupta to see if this modality can be worked out. Maybe in 1 or 2 days we would try to estimate the numbers. Besides this, there have been a few developments. I just heard a little while ago about a meeting that AG Dr. Rita Kalra had, which was a quarterly TB review meet with the DC Panchkula, and we would probably come back to this. And a very good news that Dr. Vora had shared earlier this morning. I'm saying this now so that I request them to stay on till the end of the meeting, and we would be wanting them to share a little bit of what they have shared with me today. With this, I would like to now invite Rotarian Anjali Chhabra to kindly come forward and introduce our guest speaker for this evening. And I don't see Gaurav Vijay. I think Shuchi is he off? Yes, he's there. Sanjay sir. Good, right. So otherwise I was taking a few more minutes. So Rotarian Anjali Chhabra, it's over to you for the introduction of our guest speaker for this evening. Thank you, Sanjay sir, and good evening to everyone. I have been given a task to introduce a friend. So, I can pull his leg also. I can tell you what he is capable of doing, and I can tell you all the secrets also, but I'll not take much time because I have categorically told him today that being a dramatist, we need full-time entertainment and we need something to ponder also, because life itself is a drama. That is why he's chosen that topic also, drama in life. So I'll introduce him to you seriously, coming out of that friends mode and being a Rotarian first now. So with his direction, he can make you speak. With his acting, he can make you speechless. Sangeet Natak Academy Award Best Actor 2010 for play Pyasa Ka, The Naked Truth. Recipient Mr. Gaurav Vij is well known for his devoted work as a successful creative director, as well as a successful versatile actor in theatre, particularly in the Sparsh Theatre Society, that is a registered society in Abohar, and DAV College Abohar. He is a lecturer in commerce at DAV College Abohar, where we both studied. We were classmates there, and I can assure you that you are going to have a good time for next few minutes which we have allotted him. We were in same class, and we could see at that point of time also how passionate he is for drama. Of course, pulling his leg, I would say, I never thought he'll be a successful college lecturer. I always thought ye drama hi zyada karta hai, to ye dramebaaz hi banega. But he is a very, very successful, very popular teacher also. And in teaching also, his drama skills have particularly have helped him a lot. We, when conducted sessions for CBSE on drama in teaching, was really a big hit. People asked for his sessions again and again. Of course, he got bored. So he said, I want a little break. So I thought in uski choti si break mein, let's call him for Rotary and ask him to share something with us.
So moving ahead about him, he started his theatrical saga with thundering main lead in the play Kumaraswamy on the college stage. Soon he became the first choice for main leads in full-length plays of local theatre groups and emerged as a star artist of his area and all the youth festivals of Punjab University. Just after 2 years, at the age of 20, he was honored with the color of Best Actor at Punjab University, which we get after 3 consecutively winning 3 first prizes, and then in the 3rd year you get the color. If I'm not wrong, Gaurav, is it right? So being a commerce thank you. Being a commerce lecturer in DAV College Abohar, he directed plays, festivals, continuously bagged first positions. और यूनिवर्सिटी में जब ये लोग अपनी टीम लेके पहुंचते हैं तो लोग सेकंड प्राइज के लिए एस्पायर करना शुरू करते हैं, फर्स्ट वो सोचते हैं इन्हीं को ही मिलने वाला है. So many a time his direction received awards, applauds, and on many occasions his acting won hearts. And eventually, like every good actor then moves to direction, he also moved to direction. He has written many plays also, and he has earned a good name for him in all 3 fields: acting, writing, and direction. The most distinguished feature of his direction is innovative approach towards plays of various genres, styles about any halo effect, repetition of treatment with equal mastery in both Punjabi, English, in all the 3 languages, Punjabi, Hindi, English. He believes an artist should not typecast himself in any particular style, so he and his direction have always been novel, acting, promising talent. I will share name of few which he has done, though the list is very long, but I'll share only for which he has been awarded. As actor, he as I told, he's a color holder, best actor, and honored with National Award by Sangeet Natak Academy in 2010. For his solo performance, we will share the link of his solo performance play, Pyasa Kaan. It's a wonderful play. I'm not saying it because he's my friend, but genuinely it's a exceptional thing done by him. Got many best actor awards on various stages, honored by Punjab Natshala Amritsar for best performance in 2017. Few plays which he has directed are Poster, Chanada Pani, Court Martial, Gandhi, Poster, Goodbye Swami, Chan Mama Belli Tare, Sirjana, few mimes he has also done, Asiha Natak Wale Dost, Mahamari, Court Martial, skits and mimes, of course, he is doing for college also. So I will not take much time, but I'll share one more thing that when we grow up, we move towards a certain direction. We try to know the things which are hidden. So he has this spiritual side to his personality also, which I have recently discovered. Hope we see glimpses of that too in today's session with us. So over to you, Gaurav, for next half an hour or 20-25 minutes, which we have allotted you. I am sure we are going to have happy times with you. Thank you so much for being with us, and I hand over the mic to you. Thank you. Hello. Hello. Hello, Good evening. I think I am audible, है ना? Yes. हाँ जी सर, नमस्कार. Yes sir. Very good evening to all of you. मैं वैक्सीन पे आपकी डिस्कशन सुन रहा था और थैंक यू सो मच अंजलि. मैं चाहता था तुम लाइफ में कभी मुझे इतना सीरियसली लो और ये सब बताओ मेरे बारे में, लेकिन सच में You promised the chocolate, so please, I'm waiting for that. ये जिस जैसी ऑडियंस है, मैं इतना खुश हूँ. मैंने बातें सुनी सबकी एंड आई एंजॉयड अ लॉट. और सच बताऊं तो मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ. इतने अच्छे अच्छे लोग हैं. और मैंने भी कल अपने मम्मा को वैक्सीन लगवा दिया है, ये कोरोना वाला. तो शी इज अबाउट 70, तो शी इज फाइन, है ना. 2 दिन हो गए, तो थोड़ी सी उन्हें कल ठंड लगी, शिवरिंग हुई, और अदरवाइज शी इज ओके. एनीवेज,
अंजलि, वाकई मैं आई एम सो थैंकफुल कि इतनी अलग ऑडियंस, इतने तरह की, कि मैं जिनके सामने खुद बहुत ही मुझे ऐसे लगता है कि अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। और लाइफ, ड्रामा इन लाइफ जो आज हमारा टॉपिक है, इससे पहले शिवानी ने बहुत अच्छी पोएम पढ़ी, तो उसकी पोएम सुन के मुझे एक शेर याद आ गया, वहां से शुरू करते हैं कि लाइफ कितनी सिंपल है और आसान है। जैसा कि इस शेर में, ये तहजीब हाफी एक पाकिस्तान के शायर हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उनका एक शेर है कि तुम्हें हुस्न पे दस्तरस है, दस्तरस मीन्स रीच या पकड़ कह सकते हैं। और कितनी कितनी सिंपली उन्होंने देखो ये बात कही है। और मुझे ऐसे लगता है लाइफ जितनी सिंपल हो उतनी ही खूबसूरत होती है। जैसे अंजलि हमेशा कहती है कि साधारण नहीं होता, सिंपल होना इट्स नॉट इजी। तो वो कहता है कि तुम्हें हुस्न पे दस्तरस है, मोहब्बत वोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये ज्योग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह, रियाजी का मतलब है मैथमेटिक्स। तो वो कहता है कि तुम्हें हुस्न पे दस्तरस है, मोहब्बत वोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये ज्योग्राफिया, ये फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह, ये सब भी जानना अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। तो इसको आप स्पिरिचुअली ले लीजिए, इसको आप जैसे वो कहते हैं इश्क हकीकी या इश्क मिजाजी, है ना। लाइफ में ड्रामा है, ड्रामा के बिना लाइफ नहीं होती। जैसे अंजलि ने कहा कि वो कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं अच्छा टीचर भी बन जाऊंगा, लेकिन सच बताऊं तो वो भी ड्रामा है। व्हेन यू आर टीचिंग, हम एक प्ले करते थे, प्यासा का जो सोलो प्ले मेरा था 2 घंटे का, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय डॉक्टर पाली भूपिंदर सिंह, अभी यूनिवर्सिटी में है। तो उसमें एक डायलॉग था कि टीचर क्लास च पढ़ाउण दी एक्टिंग कर रहा है ते स्टूडेंट पढ़न दी एक्टिंग कर रहा है, ते इंज लगदा है जिवें दोवें रल के एक नाटक खेड रहे हैं जिसका टाइटल है तू मेरा खिच मैं तेरा खिचदा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन ड्रामा बेसिकली व्हाट आई लर्नड मोस्ट फ्रॉम ड्रामा इन लाइफ। मैं कुछ आपके साथ किस्से साझे करूंगा जिंदगी में जो बहुत ड्रामेटिक हैं, मेरे साथ हुए, आपके साथ भी बहुत हुए होंगे। लोग ना जिंदगी में मुझे ऐसे लगता है बहुत सीरियस हैं, और मुझे ये देख के टेंशन नहीं होती। मुझे ऐसे लगता है यार लाइफ में कितना ड्रामा है, आप किसी भी सिचुएशन को कितना एंजॉय कर सकते हो। कूलली उसको ऑब्जर्व करो, देखो, है ना। मतलब वी शुड लिव लाइक नॉन सीरियसली। इतना सीरियस नहीं होना चाहिए जिंदगी में, यानी सीरियसली नॉन सीरियस होना मुझे बहुत पसंद है। और इसी चीज को लेके मैंने बहुत सारी चीजें बहुत बार जिंदगी में कुछ ऑब्जर्व किया, जिसके कुछ किस्से मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं यहाँ पे कोई मैं अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने आपके सामने, या इतने आप बड़े लोग हैं, इतने समझदार और इतनी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो मैं कोई उसमें वो करने नहीं आया हूं। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया एक मंच है और द होल वर्ल्ड इज थिएटर एंड वी ऑल आर एक्टर्स, और हम उस पे काम करने वाले अदाकार हैं। और अदाकार होने के नाते मुझे ऐसे लगता है, अगर हम सच में ये देखें कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, इवन स्पिरिचुअलिटी भी यही हमसे चाहती है कि द रोल विच इज असाइन टू अस वी शुड परफॉर्म इट परफेक्टली, नहीं तो नाइसली, है ना, विद गुड इंटेंशंस। चाहे हम फादर के रोल में हैं, चाहे सन के रोल में हैं, बेटी के रोल में हैं, भाभी के रोल में हैं, तो हम अपनी दोस्त के रोल में हैं, टीचर के रोल में हैं, हम उसको अच्छा परफॉर्म करें। अदरवाइज तो सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता है।
किसी ना किसी तरह। एक बार क्या हुआ, मैं अपने घर से ही शुरू करता हूँ, एंड आई टेक दिस एग्जाम्पल व्हेन आई टीच इन माई क्लासरूम्स। और मैं साथ साथ चाय भी पीऊंगा क्योंकि अभी मेरी रिहर्सल थी एक नए प्ले की, तो टाइम नहीं मिला, तो मैं अभी आया तो मैंने सॉरी चाय का कप ले लिया। तो देखिए, एक बार क्या हुआ कि बारिश हो रही थी, घर पे थे हम, तो मेरे मम्मा जो थे वो आउट ऑफ स्टेशन थे। तो मेरी वाइफ वो भी टीचर है, कहती, उसने पूछा कि आज क्या खाने का मन कर रहा है, शी वॉज फ्री। तो मैंने उससे कहा, यार मम्मा ना सूजी का हलवा बनाते हैं बड़ा टेस्टी, तो आज सूजी का हलवा खाने का मन है। वैसे तो हम मिलजुल के बनू लेते हैं, लेकिन चलो उस दिन क्या कहते हैं, पैट्रियार की हावी हो गई, जैसे अंजलि कहती होती है। तो मैंने उसे कहा कि यार आज ना सूजी का हलवा खिला दो। अब क्लास में मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, तो मार्केटिंग के लिए एग्जाम्पल बड़ी काम आती है। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो उसने तैयारी शुरू की सूजी का हलवा बनाने के लिए, तो सूजी थी नहीं। तो उधर दूसरी तरफ मेरे बेटे ने कहा, मम्मा वो जो शादी में खाया था ना हलवा, हलवा बनाने लगे हो, तो वो वाला बनाओ, मूंग की दाल वाला, है ना। उससे समझ नहीं आ रहा था, तो शादी वाला, शादी में जैसे बना था। तो उसने कहा वो भी बना देती हूँ। तो उसने कहा कि मैं सामान ले आती हूँ। तो बाजार की तरफ निकल गई, यहाँ हमारे जो सुपर मार्केट है वहां गई, उसने हलवा वगैरह, सूजी वगैरह खरीदी और चीजें जो चाहिए थी। तो वो जो लड़का वहां सेल्समैन है, उसने कहा, मैम क्या कर रहे हो, सूजी का हलवा। उसने कहा बना रही हूँ। तो उसने कहा, तो वाह जी वाह, तो आप ऐसा करो कि ये ड्राई फ्रूट तो डालोगे ही आप उसमें, ये ना कोई खजूरों का पाउडर है ना, और ये भी डाल दो, बहुत टेस्टी बन जाएगा। तो उसने वो भी ले लिया। उसने कहा ये नारियल भी ऊपर थोड़ा सा ऐसे छिड़क दोगे, ये भी चीज बड़ी अच्छी बन जाएगी, है ना। तो उसने वो भी ले लिया। तो जब वो घर आई तो हमारे सामने प्रोफेसर भुल्लर हैं, तो उनकी वाइफ उन्हें मिल गई। तो उन्होंने पूछा, जसलीन क्या बना रही हो, क्या चल रहा है, कहाँ गई थी। तो उसने कहा, आज इनका सूजी का हलवा खाने का मन था, मम्मी है नहीं, तो मैंने सोचा मैं बना देती। कहते अच्छा सूजी का हलवा बना रही हो, कहते फिर खोया भी डाल देना उसमें, है ना। तो वो खोया भी ले आई। तो खैर कुछ भी हुआ, बना जो भी, उसने मुझे दिया। तो एक कटोरी मैंने खा ली, है ना, बहुत टेस्टी था, जिसमें ड्राई फ्रूट भी डला हो, खोया भी डला हो, और नारियल वाला वो पाउडर भी डला हो, खजूर का भी कुछ डला हो, तो वो ऑब्वियसली चीज टेस्टी बनेगी। तो मुझे कहती कि कैसा लगा। तो मैंने कहा, यार बाकी सब तो बहुत सही है, लेकिन ना इसमें सूजी का टेस्ट नहीं आ रहा। कहती वो फिर मैंने डाली नहीं। मैंने कहा इतना कुछ डाल दिया, अब सूजी क्या करनी है डाल के। तो आई वॉज लाइक कि और यही हाल मुझे लगता है मार्केट में हमारे साथ होता है। जब हम जाते हैं तो कितना कुछ ही हम बिना जरूरत के खरीद लेते हैं, जो असल चीज है वो हमारी रह जाती है, जिस जिस चीज का टेस्ट करना होता था। आई स्माइल्ड एंड इट वाज अ वंडरफुल इवनिंग फॉर मी। ऐसे ही एक किस्सा, ड्रामा इन लाइफ, मतलब ड्रामा कैसे काम करता है। किस्सा, हमारा अबोहर जो शहर है वो छोटा सा है। आप लोग चंडीगढ़ में रहते हो, तो चंडीगढ़ तो बिग सिटी है, उसके हिसाब से यहाँ मोस्टली लोग जानते होते हैं। मुझे याद है कि यहाँ पे जिनका बेसिकली रेडीमेड का काम है ना, बहुत सारे लोगों का। देखिए कितना फन है लाइफ में, हर सिचुएशन कितनी ड्रामाटाइज हो जाती है। बल्कि मूवीज मूवीज जो बनती है ना, जैसे वो कहते हैं कि यही चीजें उठा के रियल लाइफ से थोड़ी मुतासिर होके हमारी सोच के हिसाब से चीजें बन जाती हैं। तो रेडीमेड वाले ना दिल्ली करते हैं कि सैटरडे नाइट को जाते हैं और संडे को वहां पे शॉपिंग वगैरह खरीदते हैं, माल वगैरह खरीदते हैं, और
दिल्ली से संडे रात को ट्रेन पकड़ते हैं और सुबह दिल्ली से अबोहर सीधा ट्रेन है, सुबह 6 साढ़े 6 बजे ट्रेन अबोहर आ जाती है। तो एक दिन में सब हो जाता है। और यहाँ से जाते तो हैं, सेठ लोग हैं, बड़े बड़े शोरूम वाले, लेकिन जब वापिस आते हैं बेचारे सारा दिन मेहनत करके आए होते हैं और कोई वहां काम नहीं मिलता तो बेचारे मजदूर से लगते हैं जब वापिस आते हैं। तो हुआ क्या कि ऐसे ही 2 सेठ अबोहर के, है ना, बाई चांस वो शॉप अलग अलग मार्केट में थी, जानते नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन मैं दोनों को जानता था। तो हम स्टेशन पे सुबह सुबह सैर करने कई बार निकल जाते थे, उन दिनों की बात है। तो वो दोनों आ गए और जब वो पहला आया, एक तो है ना निकल के स्टेशन से, तो एक रिक्शा खड़ा था, तो उसने देखा कि रिक्शा वाला नहीं है। तो वो आदमी जाके रिक्शा के पास खड़ा हो गया, रिक्शा वाले की वेट करने लगा। इतनी देर में दूसरे सेठ जी आ गए, है ना। अब उन्होंने देखा ये आदमी रिक्शा के पास खड़ा है, ये रिक्शा वाला है। और जो सेठ रिक्शा के पास खड़ा था उसने सोचा भी ये जो सेठ है, ये जो सामने बंदा मुझे देख रहा है, क्योंकि दोनों की हालत मजदूरों जैसी थी, तो ये सामने वाला ये जो देख रहा है मुझे, शायद ये रिक्शा वाला है। तो पहले वाले सेठ ने पूछा उससे, हाँ भाई चलना है? कहता चलना है जी। उसने तो यही कहना था। तो दोनों जने जाके रिक्शा पे बैठ गए। और जब वो दोनों बैठे तो इससे पहले कि कोई बात होती, झगड़ा होता, क्योंकि मैं दोनों को जानता था, तो मैंने जाके उन्हें समझाया, भाई ना आप रिक्शा वाले हो ना आप रिक्शा वाले हो, आपकी हालत ऐसी है। सो ये हालात ऐसे हो गए हैं, ये ड्रामा ऐसा क्रिएट हो गया है कि आपको ये फील हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी चीजें, इवन यू नो कई बार ना पेपर मार्किंग करते वक्त, क्योंकि हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड बात है, प्रोफेशन से जुड़ी बात, तो और क्लास में पढ़ाते वक्त भी कई बार, मैं अब क्लास में पढ़ा रहा हूं और मैंने, क्योंकि इक्वेशंस वगैरह अकाउंट्स में कई बार सॉल्व करनी पड़ती हैं, कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहा था तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान था और मैंने ब्रैकेट खोली और निशान बदल दिए, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। तो हमारे क्या है, गांव के बहुत सारे बच्चे, डीएवी कॉलेज अबोहर, हमारे आसपास के गांव के भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, बड़े मासूम होते हैं और उनमें बड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाता है उन बातों में। तो एक लड़का तो खड़ा हो गया, कहता सर एक्सक्यूज मी, कहता ये आपने निशान क्यों बदल दिए जी? मैंने कहा यार ये ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो निशान बदल जाते हैं। कहता एक कदम तो बदलने लग गए जी। मैंने कहा यार ये 2 साल हो गए बदलने लग गए। तो कहता अच्छा 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 अच्छा, फिर ठीक है ना। तो ऐसी चीजें ना पढ़ाते वक्त ड्रामा क्रिएट होता है, बल्कि इवन मार्किंग के वक्त, पेपर जब हम चेक करते हैं, पेपर मार्किंग, तो क्या हुआ एक बार कि मैं एक पेपर चेक कर रहा था, इतना यहाँ चंडीगढ़ में आके हम पेपर चेक करते थे, तब कॉमर्स के पेपर आजकल तो कॉलेजेस में आ जाते हैं, तब यहीं यूनिवर्सिटी में मार्किंग होती थी। तो एक बच्ची का पेपर था, तो देखिए ड्रामा की बात है कि उसने क्या किया हुआ कि क्वेश्चन पेपर ही उतारा हुआ, क्वेश्चन पेपर में से एक क्वेश्चन लिखा उसने इंग्लिश में, उसके आंसर में बाकी सारे क्वेश्चन, है ना, 3-4 पेज में टेढ़े मेढ़े करके, कभी कौन सी वर्डिंग उठा ली, कभी कौन सी वर्डिंग, ऐसे करके उसने पूरे किए हुए और सारा पेपर इंग्लिश में। खैर मुझे उसके 1-2 क्वेश्चन पढ़ के समझ आ गया भी बच्चे ने कुछ नहीं किया। तो मैं पलटता गया पेपर, तो कुछ हिंदी में लिखा हुआ, तो मैं रुक गया भी हिंदी में क्या लिखा हुआ है। तो हिंदी में उसने लिखा हेलो सर, दिस इज, जो भी उसका नाम था, उसने कहा सर मैं ना इस बार पढ़ नहीं पाई, लिखा हुआ उस बच्ची ने, और जिस वजह से मेरी तैयारी नहीं हुई, और मेरी तैयारी नहीं है ये तो आपको पता चल ही गया होगा, और मेरी कोई मजबूरी थी, पर्सनल प्रॉब्लम थी जो मैं यहाँ आपको नहीं बता सकती, तो मेरी आपसे बेनती है कि कृपा करके मुझे पास कर देवें। जो वर्डिंग उसने लिखी थी, तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। और फिर देखो बच्चे का कॉन्फिडेंस
ये लिखने के बाद उसने नीचे 7-8 लाइन खाली छोड़ी है ना, डॉट 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 के बाद 9वीं 10वीं लाइन में लिखा हुआ। फिर क्या सोचा आपने? तो ऐसी चीजें हमारे प्रोफेशन में, हमारी लाइफ में हर जगह होती है। मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है कि जब हम आप समझ लीजिए कि लोहड़ी सेलिब्रेट करते थे तो मोहल्ले में सारे इकट्ठे होके बैठ जाते थे। तो कोई गाना सुनाता था, तो कोई डांस कर लेता था, कोई क्या करता था, सब बेचारे अपना अपना टैलेंट शो करते थे, सभी बच्चे खास करके, है ना, मोहल्ले। तो हमारे एक लड़का था, वो ना बेचारा थोड़ा आई थिंक थोड़ा सा रुक के बोल लेता था। और लेकिन दिस इज नॉट द प्रॉब्लम कि उसको ना, उसने डिसाइड किया कि हर बार यार मैं कुछ नहीं करता। 9th 10th में पढ़ते होंगे तब। उसने कहा इस बार मैंने जरूर कुछ करना है। तो उसने अनाउंस कर दिया भी इस बार ना मेरी भी आइटम होगी वहां पे, मैं भी कुछ पेश करूंगा। तो जी सभी उनकी आइटम का इंतजार करने लगे, है ना। वो आया तो जैसे आपने पंजाब केसरी अखबार आता था सबके घरों में तब, और जोक्स आते थे उसमें, और जोक्स जो थे वो पढ़ते थे। और उसने एक जोक याद किया हुआ था, मुझे याद है आज भी, और उसने बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट किया वो जोक जैसे वो पढ़ के आया था, है ना। तो वो शुरू करता है जैसे, कहता है सुरेश रमेश से, जो उसका एक्सेंट था वो बीच में थोड़ा सा रुकता था। सुरेश रमेश से, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से भी ज्यादा नालायक है। रमेश सुरेश से, क्यों? सुरेश रमेश से, क्योंकि उसने तुम्हारे बेटे की नकल की और वो फेल हो गया। चिंटू रानी फ्रॉम पानीपत, है ना, पानीपत से। तो उसने वो भी नाम बोल दिए जो नीचे जोक में लिखे हुए थे। तो उसका जोक इतना फेमस हो गया कि हम कभी भी जैसे कहीं जाते आते, है ना, कहीं कोई मीटिंग होती, तो उसको बड़ा अच्छा लगता था कि मेरा जोक इतना फेमस है, और वो वैसे ही बिल्कुल वहीं से शुरू करके, है ना, सुरेश रमेश से वैसे ही सुनाना उसने, और पूरा। तो उसको ना थोड़ी देर बाद ये एहसास हुआ, यार ये कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं हो रहा। तो हमारे किसी मोहल्ले में किसी घर जैसे कोई आया हुआ था, तो उनको बुला लिया गया कि ये जोक सुनाएंगे, बड़ा अच्छा जोक सुनाते हैं। तो कहते मैं नहीं सुनाऊंगा। तो मैं वहां बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं सुना देता हूँ। तो मैंने कहा जी मैंने जैसे ही सुनाना शुरू किया, रमेश सुरेश से, तो वो कहता गलत, सुरेश रमेश से, और उसने फिर वही जोक सुनाना शुरू कर दिया। एंड आज वही लोग, वही बातें, जब हम कभी इकट्ठे होते हैं, दरअसल ये ऑनलाइन मीटिंग्स या ऑनलाइन इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? कि लाइव नहीं हो पाता हम। हालांकि मुझे तो ना ये जो टर्म है ना ऑनलाइन ऑफलाइन, मुझे इसमें ही बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि ऑफलाइन दिस इज जो पहले जैसे हम पढ़ते थे वो ऑफलाइन हो गया है ना। तो ऑफलाइन कैसे हो सकता है कुछ भी? खैर और बहुत सारे किस्से, बहुत सारी बातें, इवन ट्रेजेडी में कॉमेडी है, जैसे शेक्सपियर कहते थे कई बार। मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त के फादर की डेथ हो गई, हम वहां चले गए। तो किसी ने पूछा कि उसके बड़े भाई से पूछ के बताऊं कि कब होगा फ्यूनरल, है ना, कितनी देर में ये पहुंचेंगे इनको लेके शमशान में। तो मैंने उसको साइड में बुलाया, मैंने कहा भाई साहब ये अब पूछ दे भाई है भी कितनी देर लग जाएगी। तो बड़े मस्ती से, है ना, मस्ती से क्या, बेचारे दुखी थे, चल जो भी था, लेकिन वहां से जो बात निकलती है वो कहते बस हाँ रोआ रोवाई खत्म हो जाए,
है ना. द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दैट वर्ड रुआ रुआई, मैंने नाई दो ही सुना था, है ना, और कई इस तरह की टर्म सुनी थी, है ना, रुआ रुआई. तो बस रुआ रुआई खत्म होंदे ही मुक जे, नाल दी नाल चल पांगे. और इतना ड्रामा है जिंदगी में, इतनी ड्रामेटिक सिचुएशन होती हैं हमारे ना. वहां जैसे छोटे शहरों में क्या होता है, जैसे हम पहले पुराने 6 नंबर में रहते थे, 6 नंबर बोलते थे उसको. वहां पे एक चाय वाले का खोखा था. वहां ना लोग इकट्ठे हो जाते थे शाम को, दिन में चाय पीने और बातें करते थे. अब मैं जो नोटिस करता, ड्रामा लाइफ से निकलता है, तो मैं उनके पास जाके जो नोटिस करता था या जो मैं देखता था वो ये था कि यार ये लोग ना इन्होंने कोई बात करनी है, और 4-5 लोग अगर बात कर रहे हैं, 4 लोग बात कर रहे हैं, तो 5वें बंदे ने ना उससे कोई नहीं, जैसे किसी ने बात शुरू की तो दूसरे ने ना उससे भी बड़ी बात सुनानी है, जो उससे भी ज्यादा कीमती हो, जो जो यानी उससे थोड़ी क्या सुपीरियर बात हो. इवन यहां तक के कोई आदमी, वहां से कोई लड़का गुजरा है ना, किसी ने कह दिया यार आ मुंडा ना नशे करता है, तो दूजा आदमी ऐसे बोलेगा ओए आ की नशे करदा सी मेरी भूआ दा मुंडा. मतलब नशे करने वाले के साथ भी क्लोज रिलेशन शुरू हो जाने हैं, भी मैं ज्यादा जानता हूं नशे करने वालों. तो मुझे ऐसी एक घटना याद है, एक बार शर्मा जी हमारे वहां होते थे, तो वो बैठे हैं ना, वो जैसे बात शुरू कर दें, कहते यार कल ना, अब मैं 4 लोग खड़े हैं वहां, 5वां मैं खड़ा हो गया, जो भी फ्री होता था, फ्री का एंटरटेनमेंट था, जाके बातें सुनो. तो पहला आदमी बोला यार कल ना बांदर आ गया यार, तेरी भरजाई ना कपड़े सुकने पाई जांदी सी छत ते ए या बांदर नहीं वेख्या होना किसी. कहंदा यार एडा वड्डा बांदर, वो तो डर के ओदी चीख निकल गई. मैं उत्ते गया, यार इन्ना वड्डा बांदर, कहंदा पता नहीं बांदर ही ना लगे, असी तो थल्ले आ गए. अब सामने मेडिकल स्टोर वाला जो अंकल थे, वो उसने कहा ये शर्मा जी ने बात बताई, कहते शर्मा जी छड्डो परा, ओ तुसी किहड़े बांदर वेखे शर्मा जी, बांदर तां जाखू मंदर हुंदे शिमले. ओहो ये जी बांदर, एडे वड्डे वड्डे बांदर सामान खो के भज जाते. अब जिसने जितना देखा उसने उतनी बात करनी है, लेकिन बात उसने ऐसी करनी है भी तेरे से मैं ज्यादा जानता हूं. वो कहना शर्मा जी बांदर तो होंदे आ शाखू मंदिर वाले, कमाल दे बांदर, है ना. तीसरे एक भाई साहब खड़े थे, वो कहते वैसे ना यार गल तो तुहाडी दोवां दी ठीक है, पर तुसी आ हनुमानगढ़ वाली गल सुनी है, इत्थे हनुमान जी दा एक मंदिर बनदा पिया सी ते एक बांदर आ गया, एडा वड्डा बांदर, एडा तकड़ा बांदर, वो ते बाबू जी कोई दीवार उन्हें पसंद ना आवे, मंदिर दी दीवार तोड़ दे. वो लोग कहंदे एडा वड्डा बांदर वेखे नहीं किसी. अब मैं देख रहा हूं भी चौथा आदमी क्या कहता है ना. तो उसने देखा भी क्या मेरे पास कोई बंदर की बात है बताने के लिए. उसने सोचा, बेचारे ने दिमाग लगाया, है ना, नहीं बनी बात. तो मेरे वाल देख के कहंदा लो जी जिन्ने मुंह उन्नियां गल्लां, है ना, बात खत्म कर दी. एंड इन सब बातों में, इन सब चीजों में यू फाइंड ड्रामा हर जगह. जिंदगी, इफ यू ऑब्जर्व समथिंग फॉर एंजॉय, हर चीज में मुझे लगता है आपको ड्रामा लगेगा, और ड्रामा ही तो लगेगा, और ड्रामा ही तो लाइफ है. मैं अब आपको बताऊं कि जब हम ड्रामा की सिलेक्शन करते हैं, जब ड्रामा के बारे में सोचते हैं, कॉलेज में जब प्लेज वगैरह करवाते हैं, इवन हमारा एक प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप भी आपके चंडीगढ़ में, हमने बहुत सारे, टैगोर में, ये कला भवन में, ये है ना, उधर है एक पंचकुला में, वहां पे हर जगह काफी सारे शोज किए हमने, आपके चंडीगढ़ में भी. तो होता क्या है जब हम बेसिक थिंग व्हाट वी लैक इन लाइफ, और व्हाइल टीचिंग व्हाट आई लर्नड, कि हम अपने करेक्टर में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं, जो हमारा रियल करेक्टर है, कि मुझे ऐसे लगता है कि हमारी वेरिएशन खत्म हो जाती है और हम थोड़े जिंदगी में बोर साउंड करने लगते हैं.
बल्कि बोर हो जाते हैं। और ये बोर होना बहुत मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है, चाहे आप किसी भी एज में हो। एंजॉय योर लाइफ, वी शुड एंजॉय अवर लाइफ। और बोरिंगनेस निकालने के लिए मुझे हमेशा लगता है कि हमें अपनी स्पीच में ही नहीं, अपनी जिंदगी में भी कुछ वेरिएशन देते रहना चाहिए, ताकि हम कभी बोर साउंड ना करें और ना लगे, ना दिखें, ना मिलें। मुझे लगता है ऐसा हमारे एक टीचर होते थे, वो कहता था द बिगेस्ट क्राइम you know you do to your student, the biggest thing, the worst thing you do to your student when you get bored, when you sounding like you are a bored person, जब आपको सुनना पड़े बच्चों को। और मुझे ऐसे लगता है कि with few variations, even चाहे वो स्पीच में हो, चाहे बोलने के अंदाज में हो, चाहे बात, इवन अप्स एंड डाउन्स, है ना, कुछ बहुत जोर से बोल दिया, कुछ आराम से बोल दिया, कुछ किसी ना किसी तरह से वेरिएशन के साथ जाना चाहिए। मैं अपने थिएटर वाले लोग बच्चों को ना हमेशा ये कहता हूं कि जब भी हम वेरिएशन की बात करते हैं, स्पीच की बात करते हैं, तो आई यूज्ड टू से कि भाई आपको क्या पसंद है, पहाड़ या मैदान? तो ज्यादातर आंसर यही आता है कि सर, हेलो, हाँ, तो ज्यादातर आंसर यही आता है सर पहाड़ बहुत पसंद है। तो मैं कहता हूं पता है क्यों पहाड़ पसंद है? क्योंकि उनमें वेरिएशन है ना, उनमें उतार चढ़ाव है, छोटा बड़ा, वहां पे जाके अच्छा लगता है। मैदान बिल्कुल स्पाट है, हम बोर हो जाते हैं। और टू गेट वेरिएशन आउट ऑफ देम, आई यूज्ड टू डू वन एक्सरसाइज विद देम, जो हमको कोई भी किसी के साथ भी कर सकते हैं। इवन ना, इफ यू सी, आप में से इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, आप फिल्म स्टार को देखो, नसीरुद्दीन शाह को देखो, है ना, जो बहुत कमाल के एक्टर हैं, आप ओमपुरी को देखो, आप इरफान साहब को देखो, आप ये के मेनन को देखो, आप इन लोगों को देखो जो बहुत ग्रेट एक्टर्स हैं। और आप एक चीज बड़ी कॉमन इनमें फाइंड आउट करोगे, इनकी स्पीचेस सुनो, कि ये लोग ना वेरिएशन बहुत देते हैं स्पीच में। ये घंटा भी बोलते रहेंगे ना आपके सामने, मन की बात भी करते रहेंगे ना, तो भी आप उनको सुनोगे फॉर आवर्स, बिकॉज ऑफ देयर वेरिएशन इन स्पीच। और ऐसी और जगह पॉज लेते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, है ना। हमने जिंदगी में कोमा, फुल स्टॉप सीख लिया, और हम क्या करने लग गए, उन्हें अपनी स्पीच में अप्लाई करने लग गए। और उससे एक प्रॉब्लम हुई कि हम जैसे लिखते हैं वैसे ही बोलने लग गए, है ना। ये किसने कहा, किसने हमें ये बताया, किसने हमें ये सिखाया कि बोलते वक्त भी हमें इन बातों का ध्यान रखना है? जबकि बोला तो बहुत खूबसूरती से जा सकता है, उसमें बहुत सारी वेरिएशन दी जा सकती है ना। तब कौन सा हमारे कॉमास और फुल स्टॉप चेक करने वाला है? और यही चीज मुझे लगता है एज एन एक्टर, एज अ थिएटर, ड्रामा के लिए जिंदगी में बड़ी जरूरी है। इसके लिए हम एक एक्सरसाइज करते हैं जो बच्चों के साथ हम करते हैं, कि मैं उन्हें कहता हूं कि व्हेन यू से नो, आप नो कहिए किसी को, आप कितनी तरह से नो कह सकते हैं, है ना, मना कर सकते हैं। 2 तरह से, 4 तरह से, 5 तरह से, 10 तरह से, कल करके लाना है ना। वो बोलते हैं 10-10, 15-15 तरह से। तो मैं उन्हें बताता हूं, बेटा आप इन्फिनिट तरीके से नो बोल सकते हैं। हम ही क्यों जिंदगी में एक ही तरीका नो का पकड़ा हुआ है हमने? लेट्स हैव फन, लेट्स हैव सम वेरिएशन इन आवर स्पीच टू बी मोर ड्रामेटिक, है ना, तो ताकि हम और एंजॉय कर सके, बोर ना करें। तो बोलते हैं, मैं जैसे कई तरह से आप मना कर सकते हैं। खैर, हम फिर हम इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि हम एक डायलॉग लेते हैं। डायलॉग ले लिया, जैसे मैं मूवी देख रहा था, अब मैं उन्हें कहता हूं कि यू कैन इन्फिनिट टाइप, आप इस लाइन को बोल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, यू विल नॉट साउंड बोर एट ऑल।
जब आप समझो कि ये स्पीच में ये चीज क्यों यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मूवी देख रहा था, आपसे किसी ने पूछा बड़े आराम से आप क्या कर रहे थे, एक नॉर्मल तरीके से मैं मूवी देख रहा था, हो गया। अब आपके फादर है ना, स्ट्रिक्ट फादर या स्ट्रिक्ट बॉस आपसे पूछता भाई तू कहाँ गया था, थोड़ा सा डर के या सहम के या मैं मूवी देख रहा था, टोन चेंज। तीसरा, आपकी बहन है जो आपको इरिटेट कर रही है, या कोई ऐसा दोस्त है बार बार इरिटेट कर रहा है, तो यार क्या कर रहे थे तुम, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, है ना। चौथी पांचवी बार बोले यार मैं मूवी देख रहा था यार, है ना। थर्ड टाइप। फिर उसके बाद आपके नौकर ने पूछ लिया, है ना, आपके जूनियर ने पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया, तो हमारा बिल्कुल अंदाज बदल जाता है, सर कहाँ गए, मूवी देखने गया था। फिर मूवी में कुछ खास देख लिया, मान लीजिए आपका कोई दोस्त रिश्तेदार जानकर अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने आया हुआ था, है ना, वो आपको शाम को मिला और आपसे पूछा कहाँ था दोपहर को, तो आपने कहा मैं मूवी देख रहा था, है ना, मैं भी मूवी देख रहा था। डिफरेंट। आपका कोई दोस्त झूठ बोल रहा है कि वो मूवी देख रहा था और आप भी उसके साथ हैं, है ना, आप आ जाते हैं अचानक, तो आपको कहता है कि ये मूवी देख रहा था, आप मैं मूवी देख रहा था। अचानक वो आपको इशारा करता है ना, कि आप समझ जाते हैं ना, फिर हाँ मैं मूवी देख रहा था। टोटली डिफरेंट टोन, एक ही चीज बोली जा रही है ना, और हम बोल रहे हैं। और मान लो मूवी देख रहे थे, वहां कोई हंसी वाली घटना हो गई, है ना, और आपका जिक्र छिड़ा, आप बैठे कहीं, बात चल गई उसकी, है ना, तो आपको सुनाई जा रही है, तो आप कहते हो मैं भी मूवी देख रहा मैं तो, है ना। फिर घर में कोई घटना हो गई और आप घर आए, दुखी हैं, आपसे किसी ने पूछा आप क्या कर रहे थे, तो आप मैं मूवी देख रहा था। एक ही चीज है, 10 बार बोलो, 20 बार बोलो, 50 बार बोलो, 100 बार बोलो, हर सिचुएशन में डिफरेंटली बोली जा सकती है। और मुझे ऐसे लगता है कि सिंपल अगर स्पीच की हम प्रैक्टिस करते रहें इस जिंदगी में, आई थिंक आई हैड इनफ। मैंने टाइम ज्यादा ले लिया शायद, और I hope you all enjoyed this session. Thank you very much. Anjali, is it okay? Yeah, it's fine. I think we enjoyed your talk. At least I could see few faces laughing and having fun. So that is what we wanted. So I would request Suchi or Sanjay sir to take over from here. And if anyone wants to ask anything, Gaurav, please stay with us. Hanji, Okay. please, most welcome. Thank you. गौरव जी, I have one question. हाँ जी सर। मजा आ गया ਤੁਹਾਨੂੰ देख के. You're so charming, you know. You're so fresh to look at, right? And एक मजा आ गया तो उत्ते एक word ਹੁੰਦਾ in your language. I'm going to say लुत्फ. लुत्फ. लेकिन मेरे मन च ना एक लफ्ज बहुत खड़कता है बचपन तो. हाँ जी. And कोई भी कहे, I just hate that. कोई भी एक्सप्रेस करे, be it anybody, be it my known, unknown, in society, literate, illiterate, किसी ने एक्सप्रेस जजमेंटल होके कह देना कि ड्रामेबाज, you know what I mean? हाँ जी, हाँ जी. मेरा मन करे तो शायद कुछ मैं ऐसा बोलना शायद ऐसे नहीं बोल सकता, लेकिन not be so judgmental, tell people to ड्रामेबाज हैं. So I don't take it as a positive sense. You don't take it as compliment. It's not a compliment. But if I understand you as a person, what I've listened to you, I was just enjoying. मेरी अखों जो पानी निकल गया था कुछ चीज़ों पे. तो मेरे ख्याल नाल ड्रामेबाज is a person who can perform better than the normal person. I think ड्रामेबाज is a manager. He's a good manager. He can manage things better than the normal person. And ड्रामेबाज की variation तुझे शुरू में निकाल की थी. Initially you said कि people are serious.
And I mean to say, those who are very serious, they are very fixed in the format and difficult to change them. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, a person who is flexible, who is a performer, you know what I mean? तो इसके बारे की कहोगे कि एक ड्रामे, एक बंदा बहुत ड्रामेबाज है, मतलब how you address इस चीज में अपने रैंक चो किस तरह कटा? मैं It does not apply to me. I'm a pretty confident guy. I can manage, I can handle this work. But thing is, मैं जब किसी ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ gossip ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. I'm against to this. ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ में ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ. ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। obviously ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ obviously ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਰਸਨਲੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, obviously ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨੈਚੁਰਲ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਐਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੂ ਸਰਟਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ what we expect from people we don't get ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਐਜ਼ ਐਵਰੀਬਡੀ ਡਜ਼, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। Otherwise, everybody is playing a role, sir. Everybody. I agree. And being doing drama and that on stage, definitely it is related to life. Real life stories no भी ऐसे drama ते विच convert करके ही display ते आने हैं ना. True. So anyway, thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. बोलो ना. Shuchi. Yes, Ajit sir. Please go ahead. Okay. Gaurav, मैं सोच रहा सी कि you are a dramatist. राइट एंड अगर किसी वक्त जेन्युइनली कोई सीरियस गल करदे हो वो भी लोग समझ रहे हैं ते ड्रामा करदा पिया उदों तुसी किस तरह हैंडल करदे? सर बिल्कुल नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਈ ਸੌ your picture. ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ I asked my wife, मैं कहा आइडिया बहुत अच्छा है, तो you know she said ਤੁਸੀਂ vlog ਕੱਢੋ ਮੇਰੀ 70th birthday anniversary so we are also having tea, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਮ ਨੇ ਚਾਹ ਫੜਾਈ ਉਸੇ ਕੱਪ ਚ ਦੇਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਲਈਏ। that was not a drama at all। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਬੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਵਜੇ ਦਿਨ ਚ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ। ਰਾਈਟ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੌਰਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। गौरव जी, it was very interesting. Thank you ma'am, thank you. टाइम पता ही नहीं चला कैसे बीत गया, बहुत अच्छा था, पूरा सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप हम जल्दी चंडीगढ़ में प्ले करें और आप सब लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंजलि से हमें भी रोल दे देना थोड़ा सा, थोड़ा जरूर हम लोग मिलेंगे। जरूर। आप रोटरी में ड्रामा करो ना। हाँ, रोटरी में करवाओ। नो प्रॉब्लम सर, जब कहोगे हम आ जाएंगे। हमने तो हमारे में बहुत, मैं उसको फंड रेजर बना दूंगी। मैम आप रेडी रहो। पीछे लिखा भी हुआ है, राइट, शी इज राइट, आई मस्ट। थैंक यू सो मच। ओके। Dr. Vora has a question. Dr. Saab, please unmute yourself. Hi Gaurav ji, can you hear me? हाँ जी सर, हाँ जी। मेरा क्वेश्चन नहीं है, जो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। हाँ जी प्लीज। एक तो पहले अंजलि ने क्या थी कुछ पीछे रह गया, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आई वांट टू टेल वन IAS ऑफिसर कार में बैठने लगा, अपना सेक्रेटरीट तो नीचे आया,
तो अपने पीएम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਦੇਖ 6ਵੀਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਦੌੜਦੇ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸ ਦੌੜਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅਬੋਰ ਹਾਂਜੀ ਅਬੋਰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ABS ਅਬੋਰ लेकिन the way you spoke, I think this city of Abor is full of humor, and just as it was very pleasant. That everything has a humor. There's a lighter moment even in tragedy, like you said. Thank you, sir. That was very nice and it was very inspiring. I would say your talk was more inspiring and humorous as well. Thank you, sir. Very nice of you to explain that how we can even गुस्सा भी चढ़ जाए वो तो भी ह्यूमर है ते हंसना ते वैसे ही हंसी मजाक से ह्यूमर है ही है हाँ जी थैंक यू सो मच वंडरफुल If there are no more questions, can I invite Rotarian Kulvinder ji for the expression of gratitude to our guest speaker? So Saurabh ji, Gaurav ji, sorry, Gaurav ji, विदाउट सीरियस हुए मैं हल्के मोड से कहना चाहना मजा आ गया जो मैं पहले भी किया सीगा आज फ्राइडे है तो उसकी नॉर्मली यूज करते हैं वर्ड TGIF थैंक गॉड फ्राइडे एंड यू रियली मेड दैट फॉर अस and the knowledge you have in this lighter note, I think that's tremendous. You have experienced enough in this language, enough life experiences, and those sare experiences already visible sige. I could understand from different areas you were coming, and you're trying to give the pleasure of listening to everybody, right? तो एक थोड़ा बड़ा थोड़ा तकिया कलाम मैं कैच किया शायद तुहानू किसी होर ने शायद किया होए ते वेरी नाइस आई थिंक लेकिन बड़े प्यारे तरीके नाल तुसीं बोलदे हो है ना इनसेंट है ना हाँ जी हाँ तो दैट्स एक बचपना नजर आया मैनू तो मैं भी गल करना चाहूंगा जिस तरह दुआ साहब ने गल की थी आई एग्री व्हाट ही सेड 100% everybody is there to learn and go with it in future. Learning is not ever you can till you're alive you're learning every single day. तो भाई वीर सिंह जी ने क्या सीखा कि होशा नालों बेहोशी चंगी रखदी हमेशा ठिकाने मैनू भी पता है वो किस कंटेस्ट किया सीगा लेकिन जब मैं अपनी मां नाल पंगा लेना होंदा तो मैं किसी होर कंटेस्ट रिलेट कर देना तो मैं आई थिंक last week I was in one party and with some friends after 1 year and they were new friends all around and मैनू नहीं समझ आई कि मैं इतना छिड़ गया इतना जॉय च आ गया मैं इतना हल्का फील कर रहा सी कि I expressed in every language whatever possible I expressed on the way back and good ones good laughter on the way back little touching my little wife said she never say otherwise कहती कुछ ज्यादा नहीं हो गया तुसी मतलब तुसी maybe उसने एक साल तो देखा नहीं me in corona and she saw maybe it was shock to her कि what I am doing or behaving maybe in the morning that thought came in my mind again maybe right but I tried to reach those people again they were so happy and they were so wanting to meet me again you know so while leaving that place I use one quote roz lo moj lo na mile to khoj lo you will not believe I was in a different state that time that quote written in a Hindi that circulated all around. One of my friends sent me that your quote has become viral and I'm sure somebody from that party picked it and typed it and attached a picture. तो कहने का मतलब है कि तुसी अपने आप को हल्का करके एक्सप्रेसिव हो जाने हो ईमानदारी नाल ते तुहानू रिसीव करने वाले प्यार करने वाले बंदे जरूर मिलदे ਜਿਹੜੇ नहीं होंदे maybe sometimes they are more serious maybe उन्होंने a joy experience नहीं किया होंदा तो वो कदी-कदी conflict होंदा जो तुसी आज एड्रेस करके I think you have given such a great message to all of us कि लाइफ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਥਾਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤਨੀ ਸਵਰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗॉड bless you and look forward to see you again in Rotary thank you so much sir and special thanks to Anjali
and all of you are cool ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, that is also wonderful. Thank you so much. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ experience ਹੈ. I too get to learn. Thank you. It was really nice, very nice. Thank you. Gaurav ji, we have a meeting अभी 10-15 मिनट हो जाएंगे. I would want to. Anjali, sir, may I leave, sir, please? 5 minutes. Stay 5 minutes more. We are here for another couple of minutes. We'll like to have you with us. I just wanted to give my closing remarks for you. That is why I said 5 minutes. जो भी creative persons होते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो या एक्टर, पोइट हो या पेंटर, मैं समझता हूँ जिंदगी को एक अलग ही तरीके से, एक अलग गहराई से देखते हैं, और वो एक सच्चाई है जो हम शायद अपनी हड़बड़ में, अपनी जल्दबाजी में नहीं देख पाते. सो दैट इज व्हाट यू हैव डन टुडे. प्रॉब्ली द पंचकुला का जो स्टेज आप याद कर रहे थे, शायद इंद्रधनुष थिएटर आप सोच रहे होंगे जहाँ. सर कलाग्राम याद आ गया मुझे. हाँ, सो थोड़ा सा इफेक्ट आपकी बातों का देख लीजिए कि सुरेश ने रमेश कहा और गौरव से सौरव हो गए आपके वोट ऑफ थैंक्स में हम. बट वो चंडीगढ़ में है, पंचकुला में नहीं है जी. कलाग्राम, हाँ, जस्ट बिफोर एज फैक्टर, इतना बारीक दिखाई देता है, इतनी तो गलती हो जाती है ना. He himself is more impressive than just his name, जी गलती नहीं थी, वो इनका इन्फ्लुएंस था हमारे ऊपर. सुरेश रमेश की कहानियां सुन के हम भी गौरव सौरव में आ गए. Agree, 100%. So it was his influence, not, and I don't mean it's not a mistake. Gaurav, your t-shirt was very good. Thank you, sir. So जो टॉपिक हमें दिया गया, मैंने बताया गया था कि drama in life, you really have brought everything in focus. आपने तो ऐसे मैंने अगली बार ऐसा कुछ टॉपिक होगा, आई थिंक यू कैन इवन से नुक्कड़ नाटक और नुक्कड़ टेल्स, क्योंकि हमें ऐसा लगा बोहर के किसी नुक्कड़ पे खड़े हो गए, हमें बंदर की कहानियां सुनाई जा रही हैं, हमें टूटी दीवार दिख रही है. सो इट इज अ वेरी, बहुत मुश्किल है जूम पे, आई कैन अंडरस्टैंड फॉर अ क्रिएटिव पर्सन टू कनेक्ट टू पीपल, लेकिन आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे साथ कनेक्ट किया और बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये इंटरेक्शन करते हुए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गिविंग अस. संजय अबोहर में नुक्कड़ कम और गलियां ज्यादा, गली नंबर 10 तो मुझे एंड यस, बिल्कुल जी. और जैसे डॉक्टर रीटा ने कहा, आई ऑल्सो सेकेंड हर. डॉक्टर रीटा रबर स्टैंप लेकर बैठती हैं कि आप टिकट बनाओ अपने शो के और हम रोटरी का थप्पा लगा देंगे. सपोर्टेड बाय, स्पॉन्सर्ड बाय. Actually finalize the date today itself. 100%. I think let's do it, Rita ji. हमारे Saturday पे करें 18th May को. Good idea. ठीक है. Definitely, whatever suits to गौरव जी के साथ जो भी सूट होता है. No problem from my side, sir. Let's do it. मेरा एक सजेशन है, ड्रामा इन लाइफ की जगह Sir, ह्यूमर. he cannot say no. Sir, he cannot say no. Don't worry. चलो बस मैं बुकिंग कर रही हूँ फिर. ठीक है मैम. Let's do it. Okay. और वीरे इन्होंने बहुत फायदा Something. क्या फायदा चुकेंगे बता. सारा बुहर इकट्ठा कर दूंगी ना 6 सेकंड. अरे वो मेरा भाई भी है. आज अंजलि और शिवानी तो तेरे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन ले लेंगे. अच्छा, पहले भी मनिया रहो. I think let's give him great audience. He'll be very happy. Generously, he'll be doing too good. But it's very good as a event. I am with you. You can make me a chairperson, Rita ji. Gaurav ji, I just wish to add one thing. May I? Yes, sir, please. रीटा मैम, मेरे को भी कहीं कहो. क्या? मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. आप गलती से मुझसे म्यूट हो गए. There was a click by chance and. मैं कह रही थी मुझे भी कहीं ऐड कर लेना.
Okay, sure. Gaurav ji, I wish to add something. Yes, Yes, sir. sir, Yes, please. sir. Yes, sir. I feel that the topic was very interesting indeed. And generally you find that children indulge more in dramas compared to the grown-ups, with age. And somebody very learned has said that awaken the child in you. Exactly. Awaken the child in you. So if we could awaken the child in each one of us, I think life would be much better and different. That's what I wanted to say, sir. Thank you. Thank you so much, Gaurav ji, for being with us. We will proceed with the rest of this meeting now. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, all of you. Thank you. I would now like to invite our Secretary Shuchi for the announcements. And Shuchi, before we go to birthdays and anniversaries, like I said at the beginning of the meeting, I would like AG Dr. Rita and Rita Dr. Vora to announce what they have shared this earlier today after your announcement of the events this week. Okay, sir. I would like to inform members that Shuchi is connecting from Banaras today. Yes. Right. So can you see me, Sanjay sir, and hear me? Yes. Okay. Good evening, everyone. Thank you, Sanjay sir, for the opportunity. We did another Astha project today, wherein 30 more girls of Government Senior Secondary School were vaccinated thanks to Cancer Sahayata Charitable Society, thanks to Rotaract Club Samaritans for assisting us, and above all, thank you, Rita ma'am, for arranging the vaccines without any burden on the club. Besides this, there was the district quarterly TB review meeting with the DC Panchkula today, in which Rita ma'am participated, and 10 MDR TB patients were given nutritional supplements. Here are some pictures. Dr. Rita smiling as ever. The Miyawaki plantation was done at Sector 6 Panchkula Hospital. We can see Salil sir, Rita ma'am, and Rotaract Club Samaritans President Harshit and Vice President Arundhati. In announcements, I have a very important announcement to make. To commemorate the International Women's Day, Womania, a hybrid event, is being celebrated with live shopping and food street, karaoke, crazy games, etc. And this is being done on 8th of March, which is Women's Day. The timings are 11 a.m. to 7 p.m. There are lots of sponsors. This is basically a fundraiser for our Astha project. The location is number 16 Shivalik Enclave, Chandigarh. We have 3 speakers who would be speaking from 12 to 1 on a virtual webinar, in which we'll be knowing about the different apps we can use to do shopping, banking, travel tickets, etc. We also have a Lakme beauty professional speaking about hair and skin care. And we have a chief guest, Ms. Divya Arora, to share her experience and achievements in journey of life. The webinar is scheduled from 12 to 1. Kindly make a note and do join in big numbers to make this a success. The participants shall be doctors, nurses, women, COVID warriors of Panchkula and Chandigarh, Rotarians, Rotractors, Inner Wheel and Neighborhood. Let's get together and celebrate this. Before we go to birthdays and anniversaries, Sanjay sir, do I hand it over to Rita ma'am and Vora sir? Yes. Hanji. Over to you, Vora sir, Rita ma'am. Whoever unmutes first. Yeah. So if Dr. Vora wants to say, he can go ahead. Vora sir, please unmute yourself. I'm saying ladies and AG first. Go ahead. मैंने कहा ladies and AG first. Okay. So thank you, President Sanjay.
So you want me to talk about this cervical cancer project or the TB? The TB. Okay. Needs to have to So as you all know that we have been doing this nutrition supplement program every month on Nikshay Divas, which happens to be 24th every month, wherein we reach out to patients suffering from multi-drug resistant TB and HIV TB co-infection. So we provide them dry ration consisting of gur, chana, soybean flour, soybean pulses, and soya nutries, so which can last them for the entire month. And this happens in different locations in Panchkula and nearby areas. So 25 to 30 patients participate every time, but we provide to all the 100 people who are registered in the TB cell dot center. So this program had a big setback because of non-supply of drugs and because of this pandemic. But after October, the things have improved. Most of the patients had dropped out as they migrated back to their hometown, but things are slowly improving. And on 24th of March, which happens to be a World TB Day, we are organizing again a hybrid event, which is basically at state level, wherein we have our district governor participating. And I have also confirmations from our RI director-elect A.S. Venkatesh, and quite a few, Governor of Haryana, Health Minister Haryana, and we have a walking challenge as the first component. Then we will be distributing this MDR TB patients nutrition supplements, and a painting contest to decorate the walls of oxygen generation plants which have been set up in all the district hospitals of Haryana. So this is being organized at state level, and some quiz contest, and basically we will be felicitating the performers also. So this is going to be a huge event, and I look forward to participation, not only from Rotary of Panchkula, Chandigarh, but the entire state of Haryana. So this is all I have to share today about this TB program. So this is the quarterly meeting which I attended, which is just to review the progress we have achieved in TB program. Thank you. Okay, bye. I will go. Coming to the birthdays and anniversaries. Shuchi, sorry, I did realize I was on mute today. Sorry. Yeah. I just wanted AG Dr. Rita also to, to give a count, because you said she did phase 3 today. So have we touched 70 now over the 3? No, 50, 50. The total count is 50 as of date, sir. Okay. And we just wanted to hear Dr. Bora, then we come to the birthdays. Is that okay, sir? Yeah, today we completed 64. Out of this, 50 have already received their second dose. So by 23rd of March, I think we should finish up with the entire group of 100 children at Ratewali, and have an appointment with Jaloli. Since we are still getting in funds or vaccines through Sahayata, so we will continue to support them that way. And we also have a vaccination day on 16th of March. So it's likely. Hello. Anji. Yes, Rita ma'am, we can hear you. वो मेरे कुछ और ही खुल गया था, पता नहीं क्या खुल गया. So जो 16th March को भी they are saying, because it is a national vaccination day, so maybe we will start in some other school. And we also have confirmation for vaccination sponsorship from HURAG, Rotary Action Group, Health and Wellness. So I think we'll cover another 100 very easily.
Wonderful. Wow. So, Dr. Vora, are you there? You all must have seen in the bulletin that we are getting appreciation from abroad also. Anil Puri has given a very good observation about our bulletin. Anil Puri is the brother of Ashok Puri, and the Puri family has already given nearly 10 lakh rupees for Peer Mashallah. So he says he not only reads our bulletin, but he also goes to our YouTube channel, and he saw the complete meeting, DG's visit, and commented on that. I've written about that in the bulletin. Now, just today, this morning, I got another mail from abroad, from UK. And this is from a club where late Gurdeep Singh Deep had visited in July 2017. And that whatever the certification he got has been published in our bulletin also at that time. And this president, Adrian Simon, is the current president. And he has also reported that there were some COVID casualties in his club. And one of the casualties, I think he is a past DG, he has a bequest of 500 pounds. So he has offered this 500 pounds to us for any of our projects. So when I informed Sanjay, president, he said that the bulletin, we can use the bulletin for fundraising also, if we report such good events happening in our club. So now it is up to the club to decide what we can do with this 500 pounds. And now, it doesn't stop here. He says, President Adrian Simon says that he has some golfers also who would be ready to contribute. And I think I would request President, we can have one meeting with President Adrian of this club in London. It is Golder Club. Golders Green Club, yes. Yes. And we can have a joint meeting with them, and we can do some joint projects with them also, since he is offering more funds for us. So the board can take a decision how we can go about, or president can take a decision. I think it will be worthwhile having a Zoom with this club. Definitely. So that's a wonderful connect, Dr. Vora. Yeah, Shuchi, you can. Sanjay, I would request you to reply. Have you replied to his mail? I have already replied. And if you also reply, and you can. Yes, I'll be doing it this evening. Yes. Just put me on the CC when you. Yes, definitely. Take care. Yes, Shuchi. Thank you, Sanjay sir. This week we have the birthdays of Rotarian M.K. Handa on 11th of March. He has contributed 1,500 rupees for club projects. We also have birthday of Rotarian R.S. Sachdeva on 6th of March. Congratulations, everyone. And that's all from my end. Thank you, sir. Thank you, Shuchi. Also, something I should not have missed earlier, you did welcome a guest, Meeta Nigam. If there's any other guest I've missed for this evening. No one was there besides him. I called so many people today. Is Nandita ma'am there? Because then she could just introduce. Nandita ma'am is there. Meeta ma'am, I would request you to, if possible, can you switch on your video so that all of us. Yes, Neeta ma'am, please unmute yourself. We can see you. Let me spotlight her for everyone. Sure. And hi. Hi, welcome to the club. Namaskar. Namaskar. Thank you for joining us. Thank you for letting me be here. बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी, थोड़ा बिजी भी थे, तो फ्राइडेज को ही कुछ हो जाता था, तो मिस हो जाता था मीटिंग. नंदिता दी ने पहले भी बोला था मेरे को अटेंड करने के लिए. Thank you. All, Meeta ji is a homemaker, an educationist by profession, and a counselor with almost 25 years of experience of working in schools with CBSE, ICSE, ISC, and IGCSE boards. She has strong belief in moral values, community service, and environment protection. She is married to a sailor, Captain Prabhat Nikam, now involved in training, research, and development in Merchant Navy. Presently, he is the director of Chitkara University School of Maritime Studies,
They are blessed with 2 children, Shefali Shreyas Walvekar, a lawyer by profession, married to a computer engineer living in Melbourne, and Siddharth, 24 years, presently pursuing Masters in Automobile Engineering from RMIT Melbourne. Thank you. So I hope you've enjoyed this meeting, Meeta ma'am, today, and thanks to Pradeep and Nandita Sisodia for helping us connect to you. We do meet every Friday evening on Zoom, and though we did have 2 meetings physically getting together in February because there were different occasions. We were giving favor to one of our members, past district governor Shaju Peter, and then we had an official visit of the district governor. Shuchi or I, or you know, any other member you could connect to, or the members who are proposing you in due course for any queries you might have. And I would like to now take permission from members to adjourn this meeting with the usual, 10-minute we'll keep on for fellowship. So thank you everyone for being here this evening. It was really wonderful to see all of you, and we meet again next Friday. Next week actually is also the Road Tract week. So there would be a lot of activities. Also, we would be hearing from road tractors. Thank you so much, and I hereby adjourn this meeting.